बेटा इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? व्हाट इज योर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू SFEE, how many of you are able to recollect? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या थी रे बाबा? Q dot is equal to what? W dot CV plus what? Delta KE dot plus what? Delta PE dot plus what? Delta S dot. There is one more format. Small q is equal to small WCV plus the delta small KE plus delta small PE plus delta small h. My friends, anyone in the class can tell me what is the only and only condition? What is the only and only condition for applying this study flow energy equation? इसको अप्लाई करने की क्या कंडीशन है रे बाबा? फटाफट से बता देंगे. Come on everyone, come on everyone. What is the only condition for applying this? फटाफट से बता दो. What is the only condition for applying this? फटाफट से बता देंगे रे बाबा. The only condition is flow must be what? Flow must be what? Steady flow. Your flow has to be steady flow. Your flow has to be steady flow. है ना? Yes, yes. Now what is the difference between these two equations बेटा? इन दोनों इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस क्या है? What is the difference between these two equations? Only the units. Only the units. This equation is in watt or kilowatt. This equation is in joule per kg or kilojoule per kg. अरे चंपा, this first equation is in rate form. This first equation is in rate form, whereas this second equation is in specific form है रे बाबा. specific की फॉर्म में है ना? यहां तक क्लियर है? Yes, I hope each and everyone is clear. I hope each and everyone is clear. अरे फटाफट टाइप कर देंगे. Yes, विश्वा वेरी गुड, वेरी गुड. चंदन छा गए घर. स्वप्निल वेरी गुड, विश्वजीत वेरी गुड. एक्सेलेंट है रे बाबा. चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस ऑफ SFEE. कहां हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं? पहला एप्लीकेशन आ रहा है आपके सामने बेहतरीन तरीके से, नोजल. द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज नोजल. व्हाट इज नोजल? लेट अस सी बेटा. ये नोजल क्या होता है जरा ध्यान से देखते हैं. नोजल इज द स्टडी फ्लो डिवाइस. नोजल क्या है बेटा? स्टडी फ्लो डिवाइस है. इफ द नोजल इज स्टडी फ्लो डिवाइस, 100% आई कैन अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर नोजल. अरे अगर नोजल स्टडी फ्लो डिवाइस है तो 100% SFEE लगाने की सिर्फ एक ही तो कंडीशन है. वो क्या है? द फ्लो हैज टू बी स्टडी फ्लो. सो 100% आई कैन अप्लाई SFEE फॉर नोजल, विच इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी. नोजल का काम क्या है? नोजल इज द स्टडी फ्लो डिवाइस विच इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, विच इंक्रीजेस द वेलोसिटी. कहां यूज होते हैं? नोजल्स आर यूज्ड इन जेट प्रोपल्शन सिस्टम एंड एट द इनलेट ऑफ इंपल्स टरबाइन. एनीवेज, आप फ्यूचर में जब पढ़ेंगे ये सब चीजें तो आप देखेंगे वहां पर नोजल यूज होते हैं. फिलहाल आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए. Nozzle is the steady flow device, and what is the purpose of nozzle? To increase the velocity, to increase the kinetic energy. I hope each and everyone is clear till here. आपको इतना समझ में आ गया? नोजल क्या है? स्टडी फ्लो डिवाइस है. What is the function of nozzle? The function of nozzle is to increase the velocity of the fluid, is to increase the kinetic energy of the fluid. बेटा ये एक नोजल है. Let me say this converging duct is behaving as a nozzle. Sir Champu is asking, sir ये converging duct क्यों बोला? अरे as the flow is moving forward, what is happening to the cross sectional area? It is decreasing. So let me assume this converging duct. Let me assume
this converging duct is behaving as nozzle. बहुत बढ़िया, beautiful, beautiful. Now I'm taking one assumption. कब ये converging duct nozzle की तरह behave करेगा? When the flow is a subsonic flow. There is one assumption, beta. I want to be crystal clear with you people. What is assumption? Assumption is flow is what, beta? Subsonic flow. जो flow हो रहा है वो subsonic flow हो रहा है. इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? क्योंकि अगर सोनिक फ्लो हुआ तो कहानी हो सकता है कुछ और हो. इन compressible flow chapter you will be learning even the converging duct can behave as a diffuser जहां पर velocity कम होती है. तो याद रखना बेटा, I am assuming this converging duct is behaving as a nozzle and 100% the condition is a flow is what? Subsonic flow. अब कोई चिंता नहीं है मुझे, अब कोई चिंता नहीं है ना? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? 100% यहां तक क्लियर है? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. चलो नाउ लुक एट हियर बेटा, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली. बिल्कुल ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा. बिल्कुल ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा. लेट मी से द फ्लूइड इज एंटरिंग फ्रॉम हेयर एंड दिस इज इनलेट. लेट मी से फ्लूइड इज लीविंग फ्रॉम हेयर एंड दिस इज आउटलेट. तो यार एक काम करते हैं अपन लोग, इनलेट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से. लेट मी रिप्रेजेंट इनलेट बाय आई, let me represent outlet by O. Again I am repeating, please observe. Let me say this is inlet, I am representing by I. This is outlet, I am representing by O. Now let me say here at the inlet, let me write here at the inlet cross sectional area is AI, the velocity of the fluid is CI. At the outlet area is AO, velocity is CO. Jump off, be clear. Whenever I am writing C, the meaning of C is the velocity of the fluid flow. Okay? तो यार converging duct है ना, converging duct है ना, तो 100% AO has to be less than AI. Converging duct है. And what is the function of nozzle? Function of nozzle is to increase velocity. So CO has to be more than CI. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना. अगर बात हो रही है नोजल की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नोजल देन CO हैज टू बी मोर देन CI, देन ओनली द पर्पस ऑफ नोजल इज सर्व्ड. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा. अरे यार ये सब सोनिक फ्लो नहीं पता है क्या आप लोग को? आपने मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा क्या? अरे गूगल ये यूट्यूब पे सर्च कर लेना कंप्रेसिबल फ्लो बाय नेगी सर, आपको सब कुछ मिल जाएगा. फॉर द टाइम बिंग लेट मी टेल यू ओनली वन थिंग, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज लेसर देन द स्पीड ऑफ साउंड, है ना? इतना मान लो. मैक नंबर इज वेरी स्मॉल, है ना? लेस देन 1 मान लो. ठीक है, ठीक है. चलो, अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा. चलो कंफर्म करो यहां तक क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे बेटा. यहां तक क्लियर है तो आगे चलेंगे. देखो बेटा, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना चाहता हूं. दैट्स व्हाई व्हाटएवर द assumptions आर देयर आई हैव रिटन क्लियरली. वी आर हैविंग द सबसोनिक फ्लो, दैट मींस थ्रू आउट द नोजल, थ्रू आउट द कन्वर्जिंग डक्ट. दैट मींस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू और मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, है ना? ठीक है. चलो यहां तक क्लियर है? वट्ठा ब्योठे, वट्ठा ब्योठे, आ जाओ रे बाबा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. नाउ लुक एट हियर. अब आपको मजा आने वाला है. देखो, कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू SFEE, अकॉर्डिंग टू व्हाट? SFEE. बेटा बिल्कुल ध्यान से देख लेना, आपको मजा आ जाएगा. Q डॉट is equal to W dot CV plus delta KE dot plus delta PE dot plus delta H dot. करेक्ट बात है. Q dot is equal to W dot CV plus delta KE dot plus delta PE dot plus delta H dot. Now out of these 5 terms 100% one term will be 0.
any intelligent student of the class can tell me out of these 5 terms which term will be 100% zero for nozzle? इन पांचों में से 100% एक टर्म तो जीरो होनी है रे बाबा. कैन यू टेल मी विच टर्म विल बी जीरो? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ. Q डॉट, W dot CV, delta K dot, delta P dot, delta S dot. Out of these 5 terms, 100% one term will be zero. Can you tell me which term will be zero? अरे कोई भी साफ नहीं है ना. अरे for control volume work you need some shaft to cross the boundary, some shaft to cross the control surface. कोई भी shaft cross नहीं कर रही है रे बाबा. What is the meaning of that? 100% for nozzle. अरे देखो रे बाबा, देखो रे बाबा, दिस इज योर कंट्रोल सरफेस, राइट? दिस इज योर कंट्रोल सरफेस रे बाबा. ये डॉटेड लाइन योर कंट्रोल सरफेस. यस यस, दिस डॉटेड लाइन इज व्हाट अ ब्यूटी. Yes, this dotted line is your control surface, and if you observe carefully, there is no shaft crossing this control surface. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो 100% एक चीज ध्यान में रखना बेटा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, W डॉट CV फॉर द नोजल विल बी जीरो. कंट्रोल वॉल्यूम वर्क हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा. तो ध्यान से देख लेना, मजा आ जाएगा. फॉर नोजल, फॉर नोजल व्हाट विल बी W डॉट CV? W डॉट CV विल बी शून्य. और अगर W डॉट CV शून्य हो गया तो Q डॉट क्या गया? डेल्टा K डॉट प्लस डेल्टा PE डॉट प्लस डेल्टा S डॉट. बेटा दिस इज द इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर नोजल. दिस इज मदर इक्वेशन. बेटा ये है रेट की फॉर्म में. इफ आई वॉन्ट आई कैन राइट इन स्पेसिफिक फॉर्म ऑल्सो. व्हाट इज दैट? स्मॉल q इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल ke प्लस डेल्टा स्मॉल pe प्लस डेल्टा स्मॉल h है रे बाबा. यहां तक सब लोग क्लियर है? यहां तक सब लोग क्लियर है? जब भी आपके पास नोजल का क्वेश्चन आएगा, whenever you are getting the nozzle question in GATE exam, जब भी whenever in GATE exam you people are having nozzle question, immediately this equation must come in your mind where W dot CV is 0, small w CV is 0. ये है nozzle के लिए. This equation is valid for nozzle. और ये है mother equation रे बाबा. This is a mother equation रे बाबा. कहीं भी किसी भी नोजल के लिए आप लगा लेना. दिस इज द मदर इक्वेशन. राइट राइट. चलो बहुत बढ़िया. यहां तक क्लियर है? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. फटाफट से कंफर्म कर दो रे बाबा. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? झमाझम तरीके से क्लियर है रे बाबा? बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? बहुत बढ़िया. क्लियर क्लियर. मेगा इज सेइंग क्लियर, संजय इज सेइंग क्लियर, विशी इज सेइंग क्लियर. व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी. अरे टाइप करो रे बाबा, समझ में आ रहा है तो. यस, अविनाश इज सेइंग क्लियर, चंदन इज सेइंग क्लियर, वैशाली इज सेइंग क्लियर, बालकृष्णा इज क्लियर, इंद्रजीत इज क्लियर, शिवम इज क्लियर, गौरांग इज क्लियर, तेजस इज क्लियर, अन्वेष इज क्लियर. चलो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते रे बाबा, आगे चलते हैं. नाउ आई एम टेकिंग, देखो ये है मदर इक्वेशन. दिस इज मदर इक्वेशन. इसके लिए बस आपको नोजल चाहिए. अब मैं आगे बेहतरीन चीज डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना. आई एम टेकिंग few assumptions. I'm taking few assumptions. Observe, observe, observe. Focus रे बाबा. Assumption number 1. Nozzle is well insulated. If nozzle is well insulated, इसका मतलब क्या है रे बाबा? अगर नोजल बेहतरीन झमाझम इंसुलेटेड है, इसका मतलब क्या रे बाबा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बिल्कुल सरफराज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नोजल इज वेल इंसुलेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट?
Q डॉट इज इक्वल टू व्हाट, शून्य। देख रहे हो ना बेटा, अरे ये क्या है चंपू, ये क्या है चंपू, दिस इज ब्यूटिफुल इंसुलेशन, दिस इज झमाझम इंसुलेशन है। नोजल इज वेल इंसुलेटेड, द मूवमेंट नोजल इज वेल इंसुलेटेड, देयर इज नो हीट ट्रांसफर, Q डॉट इज शून्य। बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स देखो मैं कंट्रोल सरफेस फिर से बना के दिखा देता हूं आपको, कंफ्यूज मत हो जाना। दिस डॉटेड लाइन इज योर कंट्रोल सरफेस, whatever the fluid I'm having inside that is your control volume। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, छा गए गुरु। assumption नंबर 2, nozzle is horizontal nozzle, nozzle is horizontal nozzle। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा ध्यान से, इसका मतलब क्या है, सपोज दिस इज द डेटम लाइन, सपोज दिस इज द ब्यूटिफुल डेटम लाइन, सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो इनलेट पर जो पोटेंशियल हेड है वही आउटलेट पे है, मैं सेंटर लाइन से देख रहा हूं, है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोजल इज हॉरिजॉन्टल, ZI is equal to ZO at the center line। That means what I'm trying to tell you people is delta PE dot is equal to शून्य। बेटा अगर ये दो अजम्पशन और डाल दिए जाएं, देखो अगर ये दो अजम्पशन और डाल दिए जाएं तो मेरे पास क्या था, देखो फॉर नोजल आई वॉज हैविंग दिस Q डॉट is equal to delta KE dot plus delta PE dot plus delta H dot, है ना। W dot C भी तो पहले ही 0 था। अब मैंने जो assumption लिया उसके अकॉर्डिंग this Q dot is शून्य, this delta PE dot is also शून्य, so what I'm getting, delta KE dot प्लस डेल्टा PE डॉट, सॉरी डेल्टा H डॉट ना, डेल्टा H डॉट इज इक्वल टू शून्य। ये कंफर्म करो बेटा, ये कंफर्म कर दो फटाफट से, ये बात सही है क्या, फटाफट से कंफर्म कर दो, ये बात सही है क्या, ये बात सही है क्या, फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा। यस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आसिक वेरी गुड बेटा, सुभानी वेरी गुड, कुमार वेरी गुड, विश्वजीत वेरी गुड, अंशु वेरी गुड, है रे बाबा, कुंदन वेरी गुड, संजय वेरी गुड, गौरांग वेरी गुड। और अगर मैं एक और फॉर्म लिखना चाहूं स्पेसिफिक वाली, डेल्टा स्मॉल के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच इज इक्वल टू व्हाट, शून्य। ये आ गई बेहतरीन इक्वेशन। नाउ एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी इफ आई वांट टू अप्लाई these equations, what are the conditions, what are the assumptions। अगर मैं इस इक्वेशन को लगाना चाहूं, डेल्टा के ई डॉट प्लस डेल्टा एस डॉट इज इक्वल टू 0 और डेल्टा स्मॉल के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच इज इक्वल टू 0, एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी व्हाट विल बी द कंडीशंस। कंडीशंस क्या होंगी बेटा, वेल insulated horizontal nozzle ना, well insulated what, horizontal nozzle। फटाफट से कंफर्म करो, फटाफट से कंफर्म करो। यहां तक सब लोग क्लियर हैं बेटा। ये है गर्लफ्रेंड इक्वेशन, ये है गर्लफ्रेंड इक्वेशन, short and sweet। This is a girlfriend equation which is coming from mother equation। ये girlfriend equation कहाँ से आ रही है रे बाबा, mother equation से आ रही है। This girlfriend equation is coming from the mother equation। Beautiful, yes 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 yes, excellent है रे बाबा। ये है गर्लफ्रेंड इक्वेशन, शॉर्ट एंड स्वीट। चंपू इज आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट एंड स्वीट। अरे चंपू पहले गर्लफ्रेंड तो होनी है ना रे बाबा, तब तो ये पता चलेगा।
What is the meaning of short and sweet? Okay, this is beautiful girlfriend equation, short and sweet. छोटी सी छुटकी सी गर्लफ्रेंड इक्वेशन है रे बाबा. ओह माय गॉड, ओहो हो. यहां तक क्लियर है? तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, वी कैन ऑलवेज गेट गर्लफ्रेंड इक्वेशन फ्रॉम द मदर इक्वेशन. Your mother can give you girlfriend, but your girlfriend cannot give you mother. तो always remember mother equation. mother equation है तो बहुत बढ़िया है. mother equation आपको याद रखनी है. गर्लफ्रेंड की कंडीशन होती है, याद रखना. मदर की कोई कंडीशन नहीं है. मदर की कोई कंडीशन नहीं है. अरे नोजल तो है ही मदर की को, बट गर्लफ्रेंड की देखो, वेल इंसुलेटेड. वेल इंसुलेटेड होना है, साथ में क्या होना है चंपू को, हॉरिजॉन्टल भी होना है रे बाबा. इतनी सारी कंडीशन है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वट्ठा बेटे, वट्ठा बेटे. यहां तक क्लियर है? अब सुनना बेटा, एक बेहतरीन चीज, एक एनालिसिस करवाता हूं, आपको मजा आ जाएगा और बताऊंगा आपको. आई विल बी टेलिंग यू नोजल से गेट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. 4 वैरायटी बताऊंगा और वहीं से क्वेश्चन आएंगे, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे. आपको बस वो 4 वैरायटी समझनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में नोजल से. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एवरी अल्टरनेट ईयर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम हियर. ओके, सो बी केयरफुल. चलो ध्यान से देख लो आप. डेल्टा स्मॉल के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच इज इक्वल टू 0. करेक्ट. Now 100% half in bracket CO square minus CI square plus small HO minus small HI is equal to 0. अब देखो बेटा, मुझे एक चीज बताना. कैन यू टेल मी बेटा, दिस टर्म विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? 100% दिस टर्म विल बी पॉजिटिव. 100% दिस टर्म विल बी पॉजिटिव. क्या मैं बोल सकता हूं? देयर इज नो डाउट हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर विल बी पॉजिटिव. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ये तो कोई अंधा भी बता देगा, हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर विल बी पॉजिटिव बिकॉज CO इज मोर देन CI. अरे that is the purpose of nozzle, that is the function of nozzle to increase the velocity. So CO has to be more than CI. So 100% CO square minus CI square has to be positive. Half CO square minus CI square has to be positive. और अगर ये पॉजिटिव है तो कोई मुझे ये बता सकता है बेटा, what will be this? This will be negative. अरे पॉजिटिव, एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी को नेगेटिव होना होगा, तभी तो समेशन 0 आएगा. चंपो. So HO minus HI is negative, less than 0. What is the meaning of this? HO is less than HI. Oh my God! इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनना बेटा. इसका मतलब ये हो गया, if you are having well insulated, if you are having well insulated horizontal nozzle, then 100% velocity at the outlet will be more than the velocity at inlet. At the same time, 100% specific enthalpy at the outlet will be less than specific enthalpy at the inlet. That means if kinetic energy is increasing, enthalpy is decreasing. Are you clear with this? Are you clear? Are you clear? Are you clear with this? Are झमाझम. अरे चंपू रे बाबा चंपू. When the fluid is flowing through well insulated horizontal nozzle, velocity is increasing, but specific enthalpy or enthalpy is decreasing. That is the reason why HO is less than HI. Oh ho ho, वट्ठा बेटे, वट्ठा बेटे. एक्सीलेंट है रे बाबा. अब मैं बताऊंगा गेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन. अरे मजा 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 मजा, फील ले लो रे बाबा, फील ले लो रे बाबा. अरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कुछ कम हो रहा होगा ना. वो कम क्या हो रहा है? वो कम हो रही है एंथैल्पी. अब सुनना ध्यान से बेटा, गेट एग्जाम में ना आपके साथ खेलता है एग्जामिनर. गेट एग्जाम में एक और चीज देगा.
एक और चीज देगा, वो होगी परफेक्ट गैस। देखो जरा हेडिंग, परफेक्ट गैस। ध्यान से सुनना बेटा, गेट एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बनेगा, बस क्लास अटेंड करते रहना। कीप अटेंडिंग द क्लासेस, आई एम टेलिंग यू, it is my responsibility, I will make sure you are able to solve each and every question which is coming from my part। लेकिन बस दिमाग खुला रखना और समझते रहना। अब देखो गेट में क्या बोलता है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू द नोजल दैट इज परफेक्ट गैस। सो ध्यान से देखो, हेडिंग पढ़ो पहले, परफेक्ट गैस फ्लोइंग थ्रू वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल। तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो रही है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो रही है। व्हाट इज दैट? नाउ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू द नोजल इज perfect gas। okay, now listen carefully, there will be 4 type of questions in gate exam। the first type, they will be asking you what is the velocity at the outlet of nozzle। पहला क्वेश्चन, अरे आप बोल रहे हो ना, you are saying sir velocity will increase, तो वो वही पूछ रहा है, बताओ बेटा what will be the velocity at the outlet of nozzle। first variety of question which comes in gate exam। second variety, you are saying na enthalpy will decrease, and if you are having the perfect gas, enthalpy is the function of temperature। second question, they will be asking you what is the temperature at the outlet of nozzle, what is the temperature of the perfect gas at the outlet of nozzle। third question, they will be asking you what is the density of the gas, density of the perfect gas at the outlet। and fourth question, they will be asking you what is the exit area or outlet area, outlet cross section area of the nozzle। रेडी है चारों को समझने के लिए? क्वेश्चन समझ में आ गए? ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में। अगर आप रेडी हैं तो आगे चलते हैं, अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर आगे चलेंगे बेटा, फटाफट से बोलो, अगर आप रेडी हैं तो आगे चल रहे हैं रे बाबा, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो या अरे नेगी सोल्जर्स रेडी है रे बाबा, झमाझम रेडी है रे बाबा। चलो फर्स्ट वन, वेलोसिटी एट द आउटलेट। अब देखो यहां पर क्या क्या गिवन होगा एग्जाम में, एग्जाम में क्या क्या गिवन होगा देख लो। दे विल बी गिविंग यू परफेक्ट गैस, they will be giving you perfect gas, they will be giving you well insulated horizontal nozzle, what will be the data given? Given data will be CP, CV, CI, TI, TO। what you need to find? to find CO। कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे? देखो ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, बस बन गया क्वेश्चन गेट का। perfect gas is given, perfect gas is given, CP is given, CV is given। of course you need not to worry, this is your control surface and inside volume is a control volume। और क्या दिया है बेटा, और क्या दिया है आपको? डेटा, डेटा दिया है इनलेट पर, आउटलेट पर। इनलेट पे दिया है CI, इनलेट पे दिया है TI, आउटलेट पर दिया है TO। कैसे निकालोगे बेटा? हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड? अरे आई एम हैविंग, कैन आई अप्लाई गर्लफ्रेंड इक्वेशन? जल्दी से बताना, क्या मैं गर्लफ्रेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं बेटा? कैन आई अप्लाई गर्लफ्रेंड इक्वेशन रे बाबा? कैन आई अप्लाई गर्लफ्रेंड इक्वेशन रे बाबा? यस, आई एम हैविंग वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने गर्लफ्रेंड इक्वेशन अप्लाई करी, क्या बोलती है गर्लफ्रेंड इक्वेशन? डेल्टा KE प्लस डेल्टा स्मॉल h इज इक्वल टू 0। व्हाट इज डेल्टा KE? डेल्टा स्मॉल KE हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर।
Anyone in the class can tell me how to write this delta small h? ये डेल्टा स्मॉल h को अपन लोग क्या लिख सकते हैं रे बाबा? ये डेल्टा स्मॉल h को क्या लिख सकते हैं रे बाबा? फटाफट से बता देंगे, फटाफट से बता देंगे। बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा। व्हाट कैन वी राइट फॉर डेल्टा स्मॉल h? ये डेल्टा स्मॉल h को क्या लिख सकते हैं रे बाबा? क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी से बोलो रे बाबा। आई एम हैविंग द परफेक्ट गैस, आई एम हैविंग द परफेक्ट गैस। मेरे पास परफेक्ट गैस है। वट एवर द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू दिस वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, दैट इज योर परफेक्ट गैस। और अगर परफेक्ट गैस है रे बाबा तो 100% CP डेल्टा T। यार अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे महाराज, अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। You can easily find, I need to find CO, मुझे CO निकालना है, मुझे CO निकालना है। CI गिवन है, TO गिवन है, TI गिवन है, आराम से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं। ये लो जी, एक क्वेश्चन करवा देता हूं। गेट 2022, गेट 2022। क्वेश्चन क्या है? मान लो एयर है, एयर इज फ्लोइंग एंड CP इज 1, अरे चंपू हो गया बोर्ड, 1.005 किलो जूल पर kg पर केल्विन। CI इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल गिवन है बेटा, है ना। TI मान लो 1000 केल्विन है और TO मान लो 300 केल्विन है। बस ये डेटा गिवन है। निकाल लोगे क्या? कैन यू फाइंड? फटाफट से निकाल के बताना। आई होप आप लोग कैलकुलेटर लेकर बैठे हो। जल्दी से बता दो, अब जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आ रही है CO की। CO निकालना है बेटा, यू नीड टू फाइंड CO। फटाफट से बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO यू पीपल आर गोइंग टू गेट। बेटा परफेक्ट गैस है ना, इफ यू आर हैविंग द परफेक्ट गैस, डेल्टा स्मॉल h विल बी CP डेल्टा T। फटाफट से बताओ, बहुत आराम से निकाल लोगे, बहुत आराम से निकाल लोगे। हाफ CO निकालना है, CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर 10 स्क्वायर, CP 1.005 डेल्टा T, TO माइनस TI इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है रे बाबा। कर लोगे, कर लोगे। क्या रहा है आंसर? बता दो फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विक्रमजीत, गौरांग छा गए, विश्वजीत छा गए रे बाबा। साथू बहुत बढ़िया, बेहतरीन है रे बाबा, ब्यूटिफुल। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर। अब बेटा यही सीखना है आपको। फार्मूला आपको पता था, लेकिन आपको यह नहीं पता था डेटा कैसे रखना है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, और यही कहलाता है एक्सपीरियंस। आपसे गलती करवा दी, आपसे गलती करवा दी, आपसे गलती करवा दी। देखो देखो, वाई इट्स रॉन्ग आई विल बी टेलिंग यू। ये गलत क्यों है मैं बताता हूं आपको। देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, हेयर यू आर राइटिंग वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, सो द यूनिट ऑफ दिस विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स जूल पर केजी। बेटा ये वाली जो टर्म है इसका यूनिट है, पहली वाली जो टर्म है इसका यूनिट है जूल पर केजी। ये जो दूसरी वाली यूनिट है इसमें आपने CP रखा है 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, यानी कि इसकी यूनिट है किलो जूल पर केजी, एंड दैट इज द रीजन योर आंसर इज रॉन्ग। यूनिट्स आर नॉट मैच्ड, यूनिट्स मैच ही नहीं है, तो आप CO की वैल्यू कैसे निकाल दोगे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बात समझ में आ रही बेटा? अब ये गलती आपने पहली बार और लास्ट बार की है। दिस मिस्टेक यू हैव डन फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, दैट्स इट। आज के बाद कोई भी नेगी सोल्जर इतने इजी क्वेश्चन में गलती करके नहीं आएगा।
आज के बाद कोई भी नेगी सोल्जर एग्जाम में या कहीं और ये गलती करके नहीं आएगा. यूनिट्स आर नॉट मैच. द फर्स्ट टर्म हाफ CO स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज हैविंग द यूनिट ऑफ जूल पर केजी, बट द सेकंड टर्म 1.005 in bracket 300 minus 1000 is having the unit of kilojoule per kg. It is not matched. मैच करेंगे, मैच करेंगे, पहले यूनिट मैच करेंगे. अब दो तरीके हो सकते हैं. Now there can be two ways. Now there can be two ways. The first way is you convert this in joule per kg so that everything in joule per kg. Second method is you convert into kilojoule per kg so that everything is in kilojoule per kg. तो मैं एक एक करके दोनों मेथड लिखता हूं. Converting everything in joule per kg. Okay, then what will happen? This first term is already in joule per kg, no problem. This first term is already in joule per kg, no problem. I will be multiplying this second term by 1000, so 1.005 will become 1005, 300 minus 1000. बहुत बढ़िया, आ गया आपका आंसर. अब नाउ यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर. अब आपका आंसर सही आने वाला है. नाउ यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर. नाउ दिस इज आल्सो इन जूल पर केजी एंड दिस इज आल्सो इन जूल पर केजी. बहुत बढ़िया. What can be the second way? What can be the second way? Converting everything in kilojoule per kg. So now what I'm going to do? The first term I will be dividing by 1000, so it will become 1 by 2000 CO square minus 10 square plus 1.005. The first term was in joule per kg, so I converted into kilojoule per kg. This was already in kilojoule per kg, so no change. अब बताओ बेटा, are you able to understand? Now the first term is in kilojoule per kg, second term is also in kilojoule per kg. You will be getting the right answer. जल्दी से बताओ अब आंसर क्या रहा है. Now you tell me what is the answer you people are getting. हाँ, अब बताइए बेटा आंसर क्या रहा है. Now please tell me what is the answer you people are getting. 1186 you should get. 1186 you should get. कोई भी मेथड यूज कर लो, कोई भी मेथड यूज कर लो. आंसर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस. यही आ रहा है. चाहे ये वाला यूज करो, चाहे ये वाला यूज करो, आएगा आंसर सेम. बोलो रे बाबा फटाफट से. यार अखिलेश छा गए गुरु. सुमेर वेरी गुड, विक्रमजीत वेरी गुड, न्यूटन वेरी गुड, कुंदन, अलाउद्दीन, वाह 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 वाह, वाठा बेटी. बेटा अगर ना कुछ नया सीखने को मिला यहां पर कि क्या गलती जनरली होती है और अब वो आप फ्यूचर में नहीं करने वाले हो, तो यार ये हार्ट्स की तो लाइन बन जाए. पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा, पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा. मजा आ जाए, मजा आ जाए. वेरी गुड वेरी गुड, वाह दीपक वेरी गुड, सुमेर वेरी गुड वेरी गुड. ये हुई ना बात, ये हुई ना बात. इसे बोलते हैं नेगी सोल्जर्स. आयुष, इंद्रजीत, वाह 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 वाह. यस यस, किशोर, विशेष, सुमेर, अनिकेत, छा गए गुरु, वैशाली, एक्सीलेंट है रे बाबा. वाह वाह वाह. यस, प्रदीप वेरी गुड, प्रतीक्षा वेरी गुड, नीतीश वेरी गुड, नवनीत वेरी गुड, चंदन वेरी गुड. वाह वाह, पारस, अनिकेत, श्रेया वेरी गुड बेटा. चलो चलो चलो, वाह वाह वाह. विशाल, शिवा, एक्सीलेंट है रे बाबा. वाह. अनुरांज वेरी गुड बेटा. चंदन एक्सीलेंट. चलो आगे चलते हैं. अब ये सबको समझ में आ गया. एवरीवन इज क्लियर विद दिस.
Everyone is clear with this? Now I'm going to the second variety. Now second variety के क्वेश्चन में क्या पूछता है, ध्यान से सुनना. सेकेंड वैरायटी के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टेम्परेचर एट आउटलेट. ध्यान से सुनना, क्या क्या गिवन होगा पूरा अच्छे से लिखता हूं आप लोग के लिए. परफेक्ट गैस विल बी गिवन, परफेक्ट गैस विल बी गिवन, वेल insulated horizontal nozzle will be given. बढ़िया है ना. क्या क्या होगा गिवन डेटा, गिवन डेटा विल बी परफेक्ट गैस है तो CPCV विल बी गिवन, TI will be given, CI will be given, CO will be given. What to find? To find is TO. बताओ कैसे निकालोगे? Can you tell me how are you going to find बेटा? कैसे निकालने वाले हो बेटा? This dotted line is your control surface. I am having some perfect gas flowing through well insulated horizontal nozzle. This is the perfect gas which is flowing through well insulated horizontal nozzle having constant CPCV. Let me say this is inlet, let me say this is outlet. CI is known, TI is known, CO is known. We need to find TO. कैसे निकालोगे फटाफट से बता दो. अरे ये तो इजी है, ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है रे बाबा. अरे कुछ नहीं, वही तो है, वही तो है, बस घुमा दिया इस बार थोड़ा सा. डेल्टा KE प्लस डेल्टा स्मॉल h इज 0, हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI इज इक्वल टू 0. कर लोगे ना, कर लोगे ना, कर लोगे ना. वही चीज है, वही चीज है, आराम से कर लोगे, है ना, आराम से कर लोगे. बहुत बढ़िया है ना. बस CO दिया है, CO दिया है. अभी क्या है, वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ नोजल इज गिवन एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ नोजल. अब मैं यहां पे एक बेहतरीन चीज दिखाता हूं बेटा. अब मैं यहां पर आपको एक बेहतरीन चीज दिखाता हूं, एक बढ़िया एनालिसिस करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा. देखना बेटा, हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI मस्ट बी 0. बट बताना जरा ईमानदारी से बताना, दिस फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये जो पहला वाला टर्म है फॉर नोजल, दिस फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव. फटाफट से बता दो बेटा, ये पहला वाला टर्म पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कम ऑन एवरीवन कम. बेटा बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला, आपको मजा आने वाला है. दिस फर्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव 100%. देयर इज नो डाउट, there is no doubt this first term will be positive because that is the function of the nozzle. The function of nozzle is to increase the velocity, so 100% CO is more than CI. 100% this first term has to be positive. बेटा ये second term क्या होगा? If the first term is positive, second term will be what? Second term will be negative. And if this second term is negative, what is the meaning of that? एक बार फटाफट से देख लो. CP TO minus TI must be negative, must be less than 0. That means TO minus TI must be less than 0. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? TO must be less than TI. Oh my God! Are you getting? If I'm having, अगर मेरे पास, if I'm having some perfect gas, if I'm having some perfect gas which is flowing through horizontal, well insulated horizontal nozzle, then 100% at the outlet the velocity of the perfect gas will be more than the velocity of the perfect gas at the inlet, and temperature at the outlet will be less than the temperature at the inlet. यानी कि अगर इनलेट पर टेम्परेचर 1000 केल्विन है, let us suppose the temperature of the perfect gas at the inlet is 1000 Kelvin, then 100% the temperature at the outlet will be less than 1000 Kelvin. Are you clear till here? यहां तक है क्लियर? ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी. बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर?
यहां तक झमाझम क्लियर है। वट्ठा बेटे कंफर्म करो रे बाबा, कंफर्म करो रे बाबा, कंफर्म करो। पूरी चैट बॉक्स लाल हो जाए अगर आपको यह चीज समझ में आ गई है। 100% टेम्परेचर एट द आउटलेट विल बी लेस देन द टेम्परेचर एट द इनलेट। अरे चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। बोलता है द टेम्परेचर एट द इनलेट इज द 1000 केल्विन। चार ऑप्शन दिए, 800, 900, 1100, 1200। चंपा, at the outlet temperature cannot be 1100 Kelvin, at the outlet temperature cannot be 1200 Kelvin, 100% it has to be less than 1000 Kelvin। तो दो ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गए, दो ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गए रे बाबा। आंसर इज आइदर 800 Kelvin और 900 Kelvin। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया। यस यस यस, shall we go for the next topic? चलो अब ध्यान से सुनना, यहां पे मजा आने वाला है, यहां पर मजा आने वाला है। ध्यान से सुनना। अरे रे रे एक चीज, अरे चंपा एक चीज और, ये देखो ये देखो, कहीं पे मैंने गेट 2022 ये हटा देता हूं रे बाबा। पता चला ये गेट 2022 में आ गया तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे, सर आपको पेपर लीक हो गया था। हटा देता हूं रे बाबा। आ गया, मान लो आईआईटी खड़गपुर वालों ने कॉपी पेस्ट मार दिया तो आ सकता है। इट कैन कम चंपा, इट कैन कम। तो हटा देते रहा हूं, मुझे नहीं पता है। हाँ हटा देता हूं। हाँ चलो, look at here, what will be the third type of question? Let us suppose we are having perfect gas which is flowing through well insulated horizontal nozzle, now what will be the given data? Let us see what will be the given data. Cp will be given, Cv will be given, Ci will be given, Ti will be given, Co will be given. To find rho O। बेटा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। Look at here, this is your well insulated horizontal nozzle, some perfect gas is flowing through this well insulated horizontal nozzle having constant CpCv. Let me say this dotted line is representing beautiful control surface रे बाबा, beautiful control surface रे बाबा, क्या ही तो control surface है। Look at here, डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है। Ci is given, Ti is given, Co is given, Po is also given, है ना। एक डेटा और ऐड कर लो, Po दिया हुआ है। कैसे निकालोगे बेटा? He is asking the density at the outlet. How are you going to find density at the outlet? फटाफट से बता दो। अरे वो छोड़ो, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ निकालोगे कैसे बेटा? याद है जब मैं आइडियल गैस इक्वेशन आपको पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग आइडियल गैस इक्वेशन, मैंने आपको कुछ फॉर्मेट दिए थे। पीवी इज इक्वल टू एन आर बार टी, इट वॉज इन नंबर ऑफ मोल्स। पीवी इज इक्वल टू एन आर बार टी, इट वॉज इन नंबर ऑफ मोल्स। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, इट वॉज इन मास। एक और बेहतरीन इक्वेशन दी थी, कितने लोगों को याद आ रहा है? P is equal to rho RT, pressure is equal to density into capital R into T. Are you able to recollect? Where capital R is what? Characteristic gas constant. I hope you are able to recollect. I am having the perfect gas. Of course, perfect gas, for perfect gas I can apply the ideal gas equation. So I can write according to ideal gas equation, according to ideal gas equation, what are we having?
समझ में आ गया रे बाबा? आर यू क्लियर? ऐसे निकालेंगे रो ओ, ऐसे निकालेंगे रो ओ। ओह माय गॉड, रो इज इक्वल टू व्हाट? पीओ अपॉन आरटीओ। बेटा आर तो निकल गया, आर तो निकल गया। कैपिटल आर इज व्हाट? सीपी माइनस। अरे चंपो, ये आर क्या है रे बाबा? ये आर चंपू को नहीं पता है क्या? ये कैसी बात करता है रे बाबा चंपू? आर इज इक्वल टू व्हाट? सीपी माइनस सीबी। आर तो पता है, पीओ इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये टीओ कैसे निकलेगा यार? पीओ गिवन है, पीओ इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, पीओ इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आर इज सीपी माइनस सीबी। नाउ हाउ टू फाइंड दिस टीओ? रो ओ इज इक्वल टू पीओ अपॉन आर टीओ। यार ये बताओ, ये टीओ कैसे निकालूंगा? अरे इसके लिए वो नोजल वाली इक्वेशन है ना रे बाबा, अपनी वो बेहतरीन वाली नोजल वाली इक्वेशन है ना रे बाबा। हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI इज इक्वल टू व्हाट? शून्य। इसको यहां रख देना बेटा। देखो पहले दो टाइप के क्वेश्चन, द फर्स्ट टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर दे आर आस्किंग द वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ नोजल, टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ नोजल, दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बाय वेरी काइंड हार्टेड पर्सन लाइक मी। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर ऐसा पेपर सेट करते हैं। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर, कूल प्रोफेसर्स ऐसा 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 क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। IIT बॉम्बे के, IIT गुवाहाटी के चिल बच्चों को कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन दे दो। जो थोड़े खड़ूस प्रोफेसर होते हैं, लिटिल खड़ूस प्रोफेसर्स, दे विल बी सेटिंग दिस क्वेश्चन, दे विल बी सेटिंग दिस क्वेश्चन। जान निकल जाएगी इसमें बच्चे की। पहले तो बेचारा यहां से टीओ निकालेगा, फिर टीओ से रो ओ निकालेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये ना, ये खड़ूस प्रोफेसर का दिमाग है कि बच्चे से डबल मेहनत करवाओ, बच्चे से डबल। ऐसा 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 पेपर ना खड़ूस प्रोफेसर सेट करते हैं। फर्स्ट दे वांट यू टू कैलकुलेट टीओ। टीओ कैसे निकलेगा? हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI। यहां से वो TO निकलवाएगा, फिर आपको बोलेगा रो निकालो। सो रो इज इक्वल टू व्हाट? PO अपॉन RTO। बहुत खड़ूस प्रोफेसर है रे बाबा, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा। चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। वेरी 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 खड़ूस प्रोफेसर, वेरी 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 खड़ूस प्रोफेसर रे बाबा। अब दिखाता हूं मैं आपको, अब दिखाता हूं आपको। महा खड़ूस प्रोफेसर आने वाले हैं रे बाबा। महा 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 महा, जैसे मेरा महा रिवीजन हुआ था ना, महा स्ट्रेटेजी हुई थी ना, वैसी महा 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 खड़ूस प्रोफेसर, मतलब उस लेवल वाले खड़ूस हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुनना ध्यान से। I am having some perfect gas which is flowing through well insulated horizontal nozzle, and what is the given data? Given data is, I am having the perfect gas, so CP/CV is given, CI is given, TI is given, PI is given, TI दो बार लिख दिया, AI is given, and CO is given, PO is given। और पूछा क्या है? To find AO। माय गॉड, ऐसा प्रोफेसर भी होता है क्या रे बाबा? लुक एट हियर, दिस इज द परफेक्ट गैस, दिस इज द परफेक्ट गैस, दिस इज द परफेक्ट गैस, which is flowing through well insulated horizontal nozzle. This is control surface, you are aware of this। बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, क्या क्या डेटा गिवन है?
CPCV गिवन है, दिस इज योर इनलेट, यहां लिख देता हूं, दिस इज योर इनलेट, दिस इज योर आउटलेट। क्या क्या गिवन है रे बाबा? CI इज गिवन, TI इज गिवन, और क्या है? PI इज गिवन, AI इज गिवन, CO इज गिवन, PO इज गिवन। कैसे करोगे बेटा इस क्वेश्चन को? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? जल्दी बताओ बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, वेरी गुड अविनाश, यो रे लाला। अब यहां कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा, अब यहां कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा। आर यू एबल टू रिकलेक्ट बेटा, व्हाट वाज कंजर्वेशन ऑफ मास? व्हाट वाज योर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर स्टडी फ्लो? अकॉर्डिंग टू conservation of mass, according to conservation of mass for study flow, for study flow, for study flow, what are we going to get बेटा? क्या मिलने वाला है? अरे m dot I is equal to m dot O ना, mass flow rate at the inlet must be equal to mass flow rate at the outlet. Mass flow rate at the inlet must be equal to mass flow rate at the outlet. What will be mass flow rate at the inlet रे बाबा? What will be the mass flow rate at the inlet? Any intelligent student of the class can tell me what will be the mass flow rate at the inlet? Rho I AI CI is equal to what? Rho O AO CO. बहुत बढ़िया बेहतरीन है रे बाबा। So what he is asking? AO ना? So what will be AO? Area of the nozzle at the outlet. Rho I AI CI divided by rho O CO। निकाल लेंगे यहां से। क्या निकाल लेंगे यहां से? इतना इजी थोड़ी ना है, इतना इजी थोड़ी ना है साहब, इतना इजी नहीं है रे बबुआ, इतना इजी नहीं है रे बबुआ। अभी तो फॉर्मूला लिखा है, क्या क्या डेटा गिवन है। लेट अस सी व्हाट इज गिवन। AI इज गिवन, नो हेडेक फॉर AI। CI इज आल्सो गिवन, नो हेडेक फॉर CI। CO इज आल्सो गिवन, हेडेक है जनाब रो I का और रो O का, हेडेक है रो I का और रो O का। ये रो I कैसे निकलेगा? ओहो, ये तो ये तो खून चूस लिया रे बच्चों का, ये तो खून चूस लिया रे बच्चों का। रो आई विल बी व्हाट? PI अपॉन RTI। बहुत बढ़िया, यहां से निकल गया आपका रो आई। PI इज गिवन, PI इज गिवन, TI इज गिवन, निकल गया रो आई। रो O कैसे निकलेगा फिर? हाउ टू फाइंड रो O? Rho O is equal to what? PO upon RTO। Oh my God, oh my God, बहुत ही महा खड़ूस प्रोफेसर है रे बाबा। अभी खेल बाकी है। PO is given, TO is not given ना। अब ये TO कैसे निकालोगे? How to find TO? TO is not given ना, TO is not given ना। हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI इज इक्वल टू 0। ओ हो, देख रहे हो बेटा, मतलब ऐसे एग्जामिनर कहां होते हैं रे बाबा। पहले आप TO निकालो, TO को यहां रखो, रो निकालो, रो I निकालो, फिर इस इक्वेशन को लगाओगे तो AO निकलेगा। बाबा रे बाबा, ये तो 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा। बाबा रे बाबा, ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं अपने पास, जान निकाल दी रे बाबा इस क्वेश्चन ने। ये तो महा खड़ूस है रे बाबा, महा खड़ूस है रे बाबा। अब मुझे एक चीज बताना, समझ में तो आ गया ना आपको? समझ में तो आ गया ना क्या करना है? देखो वेरी इजी, MI इज इक्वल टू MO एंड 100% AO विल बी इक्वल टू व्हाट? रो आई AI CI डिवाइडेड बाय रो O CO। तो आपको रो आई निकालना है, रो O निकालना है, रो O निकालने के लिए आपको TO निकालना पड़ेगा। यार मेरे पास देखो जो डेटा गिवन है, डेटा देखकर किसी को समझ में आ रहा है? एक और फार्मूला लग सकता था। यू सी द डेटा एंड यू टेल मी
कैन आई अप्लाई सम अदर फार्मूला ऑल्सो टू फाइंड टीओ? डेटा देखो, वट एवर द डेटा इज गिवन, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटा कैन आई फाइंड टीओ बाय यूजिंग सम अदर फार्मूला? एक फार्मूला और लग सकता था, एक फार्मूला और लग सकता था, एक फार्मूला और लग सकता था, एक फार्मूला और लग सकता था जो आपने नहीं लगाया। बताओ कौन सा फार्मूला लग सकता था? हा, देखो ध्यान से, देयर कैन बी वन मोर फार्मूला बाय विच यू कैन फाइंड टीओ। कैसे निकाल सकते हैं? अरे याद आ रहा है, एक फार्मूला और था ना, अरे इंसुलेटेड नोजल है ना, परफेक्ट गैस है ना, T पावर what? 1 minus gamma upon gamma is equal to what? Constant. P power 1 minus gamma upon gamma is constant. That means what? Pi power 1 minus gamma upon gamma is equal to what? Po power 1 minus gamma upon gamma ना? अरे यहां से भी तो निकाल सकते थे, यहां से भी तो निकाल सकते थे। किसी के दिमाग में आया ऐसा? अरे किसी के दिमाग में आया? ऐसे भी तो निकाल सकते थे, Ti पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू Po पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। बिल्कुल निकाल सकते थे। गलती से भी मत लगाना ये फार्मूला, भूल कर भी ये फार्मूला मत लगा देना। डोंट यूज दिस फार्मूला। सर ये आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि ये फार्मूला यूज मत कर लेना? मैं बताता हूं बेटा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूजिंग दिस फार्मूला? What is the condition for using this formula? Try to understand. The condition is your gas must be perfect gas. For applying this formula, your gas must be perfect gas and the flow must be isentropic flow. And the flow must be isentropic flow. Sir, what is the meaning of isentropic flow? Rich Champho, internally reversible, internally reversible, internally reversible adiabatic flow. Flow must be internally reversible adiabatic flow, है ना? Internally reversible adiabatic flow will be isentropic flow. अब यहां ध्यान से देखना। सर क्वेश्चन में ऑलरेडी परफेक्ट गैस गिवन है। हाँ बेटा बिल्कुल गिवन है, परफेक्ट गैस इज गिवन, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सर इन द क्वेश्चन वेल इंसुलेटेड, यस दिस कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। लेकिन इंटरनली रिवर्सिबल कहां दिया है रे बाबा? until and unless in the question they are not giving you internally reversible flow, you should not use this formula. आपके आंसर अलग अलग आएंगे। You find TO from here, you find TO from here, you will be getting two different answers. And ultimately this will be wrong because in the question they are not giving you internally reversible flow. हाँ अगर इंटरनली रिवर्सिबल फ्लो दिया है फिर आप ये यूज करो चाहे ये यूज करो, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखो ये इंटरनली रिवर्सिबल फ्लो दे कैन राइट इन डिफरेंट वेज। दे कैन राइट इंटरनली रिवर्सिबल फ्लो एज फ्रिक्शनलेस फ्लो। अगर फ्रिक्शनलेस फ्लो वर्ड यूज हो गया, अगर फ्रिक्शनलेस फ्लो वर्ड यूज हो गया तो आप मान सकते हैं कि इंटरनली रिवर्सिबल, ऑफ कोर्स द मीनिंग इज इंटरनली रिवर्सिबल फ्लो एंड यू कैन यूज दिस फार्मूला, या फिर आइडियल फ्लो, और मे बी दे आर यूजिंग द वर्ड आइडियल फ्लो। यहां तक क्लियर है बेटा? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। बात समझ में आ गई? डेंसिटी को कैसे कैंसिल कर दोगे? किसने बोला इनकंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है? डेंसिटी कैन चेंज ना बेटा, डेंसिटी कैन चेंज ना। किसने बोला यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है? किसने बोला कि इनकंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है? आर यू क्लियर टिल हियर बेटा? एब्सोल्युटली क्लियर। सो वेन एवर दे आर गिविंग द क्वेश्चन इन गेट एग्जाम, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू विल बी यूजिंग दिस फार्मूला। यस, in the question if they have given frictionless flow और ideal flow तब आप यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये वर्ड यूज नहीं हुए हैं then your first priority must be this।
अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा, ब्यूटीफुल। देख रहे हो कितना डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। आप डेप्थ देख रहे हो, आप कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ देख रहे हो, आप फ्यूचर में जो जो गलती करने वाले हो सब चीज बता रहा हूं क्लास में कि यहीं सीख कर जाओ, एग्जाम में ये गलती मत करना, यहीं सीख कर जाओ, एग्जाम में ये गलती मत करना। याद रखना, याद रखना, whenever you are applying the nozzle equation half CO square minus CI square plus CPTO minus TI is equal to शून्य, make sure either the complete equation is in joule per kg or kilojoule per kg. Remember, if you are having the perfect gas, TO will be always less than TI if the perfect gas is flowing through well insulated horizontal nozzle. और अभी आपको एक बेहतरीन चीज बताई, ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे when they are giving you the internally reversible flow in the question or frictionless flow in the question और आइडियल फ्लो इन द क्वेश्चन। ये तो बौछार के लायक है रे बाबा, बौछार कर दो हर्ट्स की, बौछार कर दो रे बाबा, बौछार कर दो रे बाबा। वट्ठा बैठे, वट्ठा बैठे, ये हुई ना बात। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अरे मजा 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 मजा, वट्ठा बैठे, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें, आगे चलें, कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं। लेट अस सी फ्यू कंक्लूजन्स। फॉर परफेक्ट गैस flowing through perfectly means well insulated horizontal nozzle, temperature at the outlet is always less than the temperature at the inlet. Yes, TO is always less than TI if you are having perfect gas flowing through the well insulated horizontal nozzle. While applying nozzle equation, Cp value should be taken in joule per kg per Kelvin if you want to write the equation in joule per kg. अगर आप जूल पर केजी में लिखना चाह रहे हैं इक्वेशन, तो आपको Cp को हमेशा और हमेशा जूल पर केजी पर केल्विन में लेना चाहिए। ये लिख देता हूं, मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। T p ^ 1 minus gamma upon gamma is equal to constant can be applied only when perfect gas is undergoing internally reversible adiabatic flow. इसको फ्लो कर लो, ठीक है। ये तीन कंक्लूजन बताएं बेटा, फटाफट से देख लो। ये तीन कंक्लूजन बताएं, फटाफट से देख लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। हाँ, ओ हो, विश्वा को समझ में आ रहा है रे बाबा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तीन ऑब्जर्वेशन, तीन कंक्लूजन बताए हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो रे बाबा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। मजा आ रहा है? अब आ रहा है थर्मो पढ़ने का मजा, अब आ रहा है थर्मो पढ़ने का मजा। अब थर्मो में क्लैरिटी मिल रही है, अब थर्मो में क्लैरिटी मिल रही है। जरा एक बार देख लेते हैं कहां से हैं ये। डाउट क्या होता है रे बाबा? आप लोग अभी जहां से लाइव है एक बार टाइप कर दो चैट बॉक्स में। एक बार देख लेता हूं कहां से स्टूडेंट्स लाइव हैं, फिर चलेंगे डिफ्यूजर के पास। देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग डिफ्यूजर। क्रिस्टल क्लियर है रे बाबा। सौम्या वेरी गुड, वेरी गुड। राधा वेरी गुड बेटा। ऋषभ, चंदन वेरी गुड। नेकी सर इक्वल टू डाउट्स आर गेटिंग स्वाहा, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मथुरा, ओ हो, बहुत बढ़िया। दीपक वाराणसी से भी हैं, झारखंड धनबाद, बहुत बढ़िया। कटनी से हैं, बांदा, ओके। नासिक सोमेश, झमाझम सैटरडे है। हरिद्वार, ओ हो। औरंगाबाद से हैं अक्षय, विकीज, झमाझम क्लियर। यूपी गौरांग, यूपी में कहां से बेटा? थाने से हैं विशाल। अरे नासिक से काफी बच्चे हैं। जमशेदपुर संजय कुमार, वेरी गुड। आनंद देहरादून से। केरला में कहां से बेटा? नालंदा से तो हैं, ओके। भिलाई छत्तीसगढ़ से संगीत। कश्यप इज फ्रॉम वाइजैग, ओ हो। आमची वाइजैग, मना वाइजैग, ओके। सायन है वेस्ट बंगाल से। स्वरूप इज फ्रॉम हैदराबाद। नेल्लोर। विकी इज फ्रॉम आसाम। नेगी साहब इज फ्रॉम चेन्नई। अनवेश इज फ्रॉम हिमाचल। एमपी से है ऋषभ। नवीन इज फ्रॉम तमिलनाडु, वेरी गुड, ओके। कोल्हापुर, हैदराबाद, ओ माय गॉड, कंप्लीट एंटायर इंडिया इज कवर्ड रे बाबा।
वाइजैग से भी काफी हैं, सरवन इज फ्रॉम वाइजैग, ओके ओके, महाराष्ट्र सांगली, ओके, प्लेस ऑफ गॉड्स उत्तराखंड, यस, बहुत बढ़िया, केरला, फसल, ओके, चलो आगे चले बेटा। राधा इज फ्रॉम पंजाब, ओह यशवंत इज आल्सो देयर, वट्ठा ब्योठे, वट्ठा ब्योठे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राजमंड्री, एक्सीलेंट, ग्रीष्मा। चलो बेटा, नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग, नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग डिफ्यूजर, है ना। वहां जाने से पहले आपको एक और चीज बताता हूं ज्ञान गंगा के बारे में, देन वी विल डिस्कस डिफ्यूजर। बेटा ये ज्ञान गंगा है, सर ये ज्ञान गंगा क्या होती है बेटा, एक बार आप जाके देखो, whatever the free classes I have taken, everything is in this ज्ञान गंगा, whatever, thermodynamics 1.0, thermodynamics 2.0, fluid mechanics, heat transfer, applications of thermodynamics, everything is arranged in systematic way for you people, हर चीज पूरा systematic way में है। XC के PYQs, yesterday so many students were messaging me, sir XC के PYQs कहाँ मिलेंगे, बेटा यहाँ मिलेंगे, XC के पूरे पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, you need not to worry, your नेगी sir is standing here, I will take care of you people, everything, special sessions, strategy and all, everything is arranged in this special session segment। सर यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ बेटा फिर से, tinyurl.com /, this is / negi 10 code, you type this in your address bar, you type this in your address bar, you will be able to reach this ज्ञान गंगा। Sir, how this ज्ञान गंगा will look like? मान लो आपने ये टाइप किया, the moment you are typing this in your address bar, कुछ ऐसा खुल जाएगा। Let's suppose you are clicking on fluid mechanics, जैसे आपने fluid mechanics में क्लिक किया, name of the chapter, lecture numbering, topics covered in that particular lecture, video class link, आपके क्लास नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। एक चीज और बता दूं बेटा, नाउ वन मोर थिंग, नेक्स्ट फ्राइडे मैं प्लान कर रहा हूं कि आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। नेक्स्ट फ्राइडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चंस, सो बी रेडी विद चैप्टर नंबर 1 फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वहां पर गेट लेवल के जो गेट 2022 में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो एवरी फ्राइडे इस तरीके से मैं एक एक चैप्टर करवाऊंगा, ताकि आपका 2-2.5 महीने में हर फ्राइडे एक एक चैप्टर कवर करते हैं, 2-2.5 महीने में आपका पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ओके बेटा मेगा, ठीक है, ओके फाइन फाइन, बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलो ओके, ठीक है बेटा। मैं देखो आप एक चीज समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, वन थिंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीइंग द टॉप एडुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस, यू विल बी सीइंग माय फोटोग्राफ इन ईच एंड एवरी बैच। अभी तक ABCDEFGHIJKL और अभी M स्टार्ट हो रहा है, हर जगह आप मेरा फोटोग्राफ देखेंगे। सो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जस्टिफाई दोज बैचेज आल्सो, दोज हु आर ऑलरेडी लॉन्च्ड ऑन प्लस। तो मुझे प्लस पर क्लासेस लेनी होती हैं। एवरी डे आई एम टेकिंग 2.5 hours to 3 hours ऑन अनअकैडमी प्लस, बट स्टिल वट एवर बेस्ट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड आई एम डूइंग फॉर यू पीपल। यूट्यूब पर आप लोग के लिए क्लासेस ले रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लेता हूँ, है ना। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हर दिन मैं यूट्यूब पर भी लूँ और उसी दिन मैं स्पेशल भी लूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल। देखो फ्राइडे को अगर मुझे टाइम मिलता है तो फ्राइडे मैं ले लेता हूँ। फ्राइडे को मैंने इनफैक्ट येस्टरडे आई हैव टेकन 3 classes कंटिन्यूसली, 2 to 3:30, then 4 to 5:30, then 5:50 to maybe 7:30 आई हैव टेकन। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। वन थिंग आई एम प्रॉमिसिंग यू, जो भी पढ़ाऊंगा बेस्ट पढ़ाऊंगा। वट एवर आई विल टीच यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग, आपको मजा आने वाला है। देखो पढ़ाते सब हैं, बट वट एवर यू विल लर्न हेयर, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे पे लोड आ रहा है, आप एंजॉय करोगे।
You will enjoy your learning with me. The way I am enjoying my teaching, in the same way you are going to enjoy the learning. इतना पक्का है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा. You will never come to know time is over. आपको कभी ऐसा लगे अरे अनअकैडमी प्लस पे 3 घंटा हो जाती है क्लास, तब बच्चे बोलते हैं अरे सर टाइम खत्म हो गया. 3 घंटा तो पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल गया. तो आपको तो मजा आने वाला है. यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग, है ना? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलें आगे. यस 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 यस, चलो चलो. व्हाट इज द डिफ्यूजर? व्हाट इज द डिफ्यूजर? यस यशवंत, चलो डिफ्यूजर क्या होता है बेटा, जरा जल्दी से बताना. व्हाट इज डिफ्यूजर? Diffuser is the steady flow device. Again, the concept is same. We are talking about the steady flow device only. Diffuser is the steady flow device which increases the pressure, and you will be finding the diffuser in centrifugal pump. देखो दिखता कैसा है एक बार देख लो. Let us suppose I am having some diverging duct. Let us suppose, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, इसको ऐसे ही बना देते हैं. Let us suppose I am having some diverging duct. This diverging duct, let us suppose the fluid flow is taking place. Fluid flow दिखा देता हूं आपको. Let us suppose the fluid flow is taking place left to right. And let us suppose this is inlet, this is outlet. So this is your diffuser. This diverging duct, this diverging duct will be behaving as a diffuser of course. The assumption is we are having subsonic flow. Fine. Now try to understand beta. Let me say this is inlet, this is outlet. Here the area is AI, velocity is CI. Here the area is AO, velocity is CO. So being diverging duct, AO is more than AI. Being diffuser, CO must be less than CI. जनरली ऐसा होता है. अब अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में पूछूं और आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इफ आई टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, आई विल बी टेलिंग यू दिस. Diffuser is equal to बात समझ में आई? ये है डिफ्यूजर, खत्म, दैट्स इट. दिस इज अ डिफ्यूजर, दिस इज अ डिफ्यूजर रे बाबा, दिस इज योर डिफ्यूजर रे बाबा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजर? नोजल का उल्टा, नोजल का उल्टा है रे बाबा, नोजल का उल्टा है रे बाबा. नोजल को उल्टा कर दो, आपका डिफ्यूजर हो गया. द मीनिंग इज whatever the equations we have seen for nozzle, those equations are eligible for diffuser also. जितनी भी जो भी मदर इक्वेशन, गर्लफ्रेंड इक्वेशन मैंने आपको बताई, वो इक्वेशन आप डिफ्यूजर के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजर में भी तो वही होगा रे बाबा. W डॉट सी वी 0, देखो Q डॉट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के डॉट प्लस डेल्टा पीई डॉट प्लस डेल्टा एस डॉट. Yes, this is the mother equation for nozzle. Same equation we can apply
फॉर डिफ्यूजर आल्सो, नो प्रॉब्लम। यही इक्वेशन आप डिफ्यूजर के लिए भी लगा सकते हैं। दिस इक्वेशन यू कैन यूज फॉर डिफ्यूजर आल्सो। दिस इज द मदर इक्वेशन जो आप लगा सकते हो। What will be the girlfriend equation? Let us suppose I am having well insulated horizontal diffuser. Then what is the girlfriend equation? Delta KE plus delta small h or delta KE dot plus delta capital S dot is equal to शून्य, or you can say delta KE plus delta small h is equal to शून्य। Anyone in the class beta? For applying this girlfriend equation, what will be the condition? What will be the condition? I am having well insulated horizontal diffuser। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है वो बता देता हूं, ध्यान से सुनना। डेल्टा के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच इज इक्वल टू शून्य, हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर in bracket HO minus HI is equal to शून्य। But anyone in the class can tell me this will be positive or negative? 100%. This will be negative for diffuser. And if this is a negative, what will be this? This will be positive. So what I'm getting? HO minus HI is a positive, na? Greater than 0. So that means HO is greater than HI. So 100% in the case of diffuser, specific enthalpy at the outlet will be more than the specific enthalpy at the inlet. Specific enthalpy at the outlet will be more than as compared to specific enthalpy at the inlet. So 100% small h is equal to what? Small u plus p small v ना। यहां तक क्लियर है बेटा? झमाझम तरीके से क्लियर है? फटाफट से कंफर्म कर दो। बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? ब्यूटिफुल, ओहो हो, बहुत बढ़िया। बता तो दिया निकेत, स्मॉल एच इज इंक्रीजिंग ना बेटा, स्मॉल एच इज इंक्रीजिंग ना। स्मॉल एच इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल यू प्लस पी स्मॉल वी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोग स्टार्टिंग से हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास फ्रॉम स्टार्टिंग? बेटा डिफ्यूजर में वेलोसिटी डिक्रीज होती है, डिफ्यूजर में वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना? देयर वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कम होती है और प्रेशर बढ़ता है बेसिकली, है ना? तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं कि क्या कम हो रहा है, मैं उसको लिख रहा हूं कि क्या बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर, बट दैट प्रेशर हाउ इट्स इंक्रीजिंग? बाय डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। व्हाट अ ब्यूटी, वेरी गुड बेटा। ये लगे रहेंगे, जितने भी नेगी सोल्जर्स हैं लगे रहेंगे। आपको मैंने एक प्रॉमिस किया था, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी इस वीक में, व्हेन वी स्टार्टेड ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 दिन में एक भी क्लास आपकी पोस्टपोन नहीं हुई है। मैं बिल्कुल सीरियस हूं रे बाबा आप लोगों के लिए। आई एम एक्सट्रीमली सीरियस फॉर यू पीपल। इन द लास्ट 5 days इवन अ सिंगल क्लास इज नॉट पोस्टपोन्ड। 550 मीन्स 550, पूरा सीक्वेंस में चल रहा हूं। अगर आप लोग लाइव बने रहोगे, इफ यू पीपल आर लाइव कंप्लीट 3 weeks का, यू रिमेंबर वी हैव द डे वाइज प्लान। आपको पहली क्लास में मैंने डे वाइज प्लान बताया था। वी आर गोइंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट प्लान। 5 क्लास पहला वीक खत्म हो गया, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। नाउ संडे देयर इज नो क्लास बिकॉज आई एम हैविंग
some other classes, 10 to 12 hours classes. Then Monday we are going to meet and we'll be solving the PYQs of nozzle and diffuser. तो बिल्कुल मिस नहीं करना है रे बाबा, बिल्कुल मिस नहीं करना है रे बाबा, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उनको बोल दो, अभी से ही बोल दो, मंडे को PYQs होंगे, नोजल के डिफ्यूजर के लाइव बने रहेंगे, है ना? ठीक है। स्टीम टेबल वाले बेटा वो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में बताऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में, है ना? मंडे सेम टाइमिंग, टाइमिंग तो फिक्स्ड है, टाइमिंग तो अपना 5:50 फिक्स है, टाइमिंग तो अपना 5:50 फिक्स है ना? अरे मजा 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 मजा। कल आप लोगों का हॉलीडे है, मेरा नहीं है। मेरी तो कल सुबह से क्लास है, सुबह से रात तक क्लास है। आप लोग का हॉलीडे है, मेरा हॉलीडे नहीं है। आप लोग का हॉलीडे है। आप रिवाइज करो, जो भी मैंने ट्यूसडे से अभी तक पढ़ा है फटाफट से रिवाइज कर डालो, कल रिवाइज कर लो, है ना? गेट एग्जाम में स्टीम टेबल अलाउड होता है? बिल्कुल नहीं होता बेटा। आपको जो भी टेबल का रिक्वायरमेंट होता है वो गेट एग्जाम में दिया होगा आपको क्वेश्चन में। वट एवर द एक्सट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड, वट एवर द डेटा इज रिक्वायर्ड, दैट विल बी गिवन इन गेट एग्जाम, है ना? ठीक है, तो एकदम पढ़ते रहो, पढ़ते रहो एकदम डट कर, है ना? मैं आपके साथ हूं। और नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, है ना? टाइमिंग रहेगी, देख लेंगे 2 बजे या 4 बजे वाला स्लॉट जो भी है। फ्राइडे को आपके 3 स्लॉट रहेंगे, 2 PM, 4 PM एंड 5:50 PM। इन 3 स्लॉट में मैं क्लासेस लूंगा। क्या क्या क्लासेस लेने वाला हूं? 5:50 PM पे तो आपका ये फिक्स्ड है, क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम एनालिसिस। 2 PM 4 PM वाले पे दो सेशन लूंगा। 4 PM या 2 PM जो भी सही रहेगा उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि गेट 2022 में आ सकते हैं। रिवीजन कर लो, है ना? फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। करेगा ना सर? वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए तो बोला प्रैक्टिस करने के लिए। आप सोचो, अगर अभी यूज नहीं करोगे, सीधा एग्जाम में करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना। तभी तो बोला अभी से ही। देखो यार, ये तो आपको पता है ना, स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में भी थोड़ी खटपट होती है ना, परेशानी होती है ना। स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी होती है ना रे बाबा। कोई भी नया रिलेशनशिप होता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो भी तो आपने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, जस्ट रिसेंटली यू स्टार्टेड योर रिलेशनशिप विद गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। लेकिन उसको स्लोली एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है तो बैठ जाएगा हाथ टाइम के साथ साथ। वर्चुअल कैलकुलेटर कहां मिलेगा बाबा रे बाबा? एक काम करूंगा, आज नेगेटन वाले में डाल दूंगा, ठीक है? नेगेटन वाले टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। क्या ही तो एग्जाम्पल दिया है रे बाबा। HMT पढ़ लो ना, रेडिएशन पढ़ा दिया है, कन्वेक्शन पढ़ा दिया है। ठीक है, एक्सपीरियंस। ESC में नहीं अलाउड होता बेटा, ESC प्री में अलाउड नहीं होता है, मेंस में होता है मैनुअल कैलकुलेटर। वी विल सी बेटा राम, जब भी लाऊंगा तो आपको बता दूंगा, कुछ भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? आपको बिल्कुल चिंता करनी ही नहीं है।